A big hello to everyone. Welcome to PW Only IAS. So I'm here to discuss daily mains answer writing practice program related to the field of environment and ecology. So before we move on, I hope your preparation is on track and I want to show you something that is very essential for you. बिकॉज इस प्रोग्राम के अंदर हमने आपको बोला था कि वी विल शो यू दी बेस्ट कॉपी, जिन्होंने भी आंसर अच्छा लिखा होगा उनकी कॉपीज को शो किया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये कमेंट भी किया कि सर हमें हिंदी में भी आंसर्स लिखने हैं, क्या उनका इवैल्यूएशन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। So first of all, let me show you the best copy that we have identified, though the marks do not go with the marks here, but yes, the kind of presentation this person has shown is really commendable, and moreover our team has given lots of better insight how to particularly tackle such questions as far as हिंदी से related answers are concerned, जो कि आप देख पा रहे हैं यहां पे। दिस इज ऑफ 4th of September, डे 15 का आंसर लिखा गया है एंड इस आंसर के अंदर जो भी इंसाइट्स हमारी टीम ने प्रोवाइड किए हैं, आई होप दिस पर्सन विल ट्राई टू इनकलकेट दीज इंसाइट्स इन द नेक्स्ट आंसर राइटिंग। और इन्हीं इंसाइट्स की सहायता से you will be able to excel through this answer writing, and this is an initiative जो कि बिल्कुल शेड्यूल्ड मैनर में आपको पूरे सिलेबस को कवर करवाने वाला है। जैसा कि पहले भी मैं आपसे मिल चुका हूं जब हमने डिस्कस किया था जीएस पेपर 1 को, जियोग्राफी से रिलेटेड प्रोस्पेक्ट्स को। आज हम डिस्कस करेंगे 7 क्वेश्चंस जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रोसीड and discuss the questions related to environment and ecology. The very first question, and as we all know that we are living in an urban areas and these urban areas are becoming the hotbed of pollution. These urban areas have become the heat islands. So these areas require some green spaces so that we can control the temperature, and उसी के लिए आप यहां पे देख सकते हैं urban green spaces are essential for ecological balance, yet they are increasingly under threat. Yes, जब भी हम अर्बन ग्रीन स्पेसेस की बात करते हैं तो इसका डायरेक्ट लिंक हमें अभी से इस्टेब्लिश कर देना होगा कि अर्बन ग्रीन स्पेसेस आर एसेंशियल। व्हाई? बिकॉज अर्बन एरियाज आर बिकमिंग अर्बन हीट आइलैंड्स। और जैसे ही ये अर्बन हीट आइलैंड की संज्ञा आप देंगे, आप इस क्वेश्चन की भूमिका को बांध चुके होंगे। और इसी अर्बन हीट आइलैंड से आगे बढ़ के यू विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रीन स्पेसेस। और ग्रीन स्पेसेस के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक बार एक ट्रिक बताई थी कि जब भी आपको सोचना हो कि डिफॉरेस्टेशन के क्या नुकसान है या एफॉरेस्टेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, उनसे आपको बहुत अच्छे से इंसाइट ऐसे मिल सकता है कि जस्ट रिमेंबर दैट वी हैव अ ट्री सराउंडिंग अस, व्हाट दिस ट्री कैन गिव अस। Just think of in this pattern, you will be able to generate points here, you will be able to generate dimension. So without wasting time, let's move on to the introduction part of this question. This question will surround around the idea of urban green spaces. First of all, we will have to mention what exactly these green spaces are, what exactly these urban green spaces are. This will include the parks, this will include the wetlands, and these parks and wetlands are essential for the ecological balance of the cities. And in fact, one more thing I must tell you, with the rapid urbanization and unsustainable infrastructural development, we are pretty much sure that these green spaces are now being depleted at large extent. So what I'm planning to explain you here is, we'll just introduce this answer by citing that urban green spaces are nothing but the natural parks, or we can say the parks are surrounding us along with the wetlands and the green spaces which are essential for the ecological balance of the cities. But in the recent times, according to the reports of World Economic Forum, we are decreasing these areas with the rapid urbanization and unsustainable infrastructural development. This must be the primary part of your answer. So यहां पे इंट्रोडक्शन लिखने के लिए एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं, हाउ यू कैन स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। जब भी आप कोई भी इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उस इंट्रोडक्शन के अंदर कैसे एक बेहतर और एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है। सबसे पहले
जैसे कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर अर्बन ग्रीन स्पेसेस को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अर्बन ग्रीन स्पेसेस को डिफाइन करने के बाद आप इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा कॉन्टेक्सचुअल लेके जाना चाहते हैं। अब इसको कॉन्टेक्सचुअल लेके जाने के लिए आपको यह बताना पड़ेगा कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्बन ग्रीन स्पेसेस आर अंडर थ्रेट, सो वी नीड टू प्रोवाइड सम डेटा टू सब्सटेंशिएट दैट अर्बन ग्रीन स्पेसेस आर अंडर थ्रेट। ये एक बेस्ट इंट्रोडक्शन होगा जहां पे आपने ये बता भी दिया कि व्हाट एग्जैक्टली द अर्बन ग्रीन स्पेसेस आर, एंड सेकंड यू हैव शोन, यू हैव सब्सटेंशिएटेड बाय साइटिंग द डेटा ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दैट यस दिस मच ऑफ अर्बन ग्रीन स्पेसेस आर अंडर थ्रेट एंड वी नीड टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस नाउ इन द सिटीज. So let's come back to the question now. What this question is saying, yet they are increasingly under threat, urban green spaces are essential. So we need to say, we need to write about the urban green spaces now, how they are maintaining the ecological balance and why they are under threat, and we need to analyze the importance of the urban green spaces here. जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं, पहला जो स्टेप होगा, significance of urban green spaces for maintaining the ecological balance. सबसे पहली बात, what a tree can do. एक ट्री होगा तो उसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स आएंगे, बहुत सारी गिलहरियां, यानी कि उस ट्री के सराउंडिंग में यू विल हैव द लॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो इफ यू विल मेंटेन द अर्बन ग्रीन स्पेसेस, इट विल हेल्प यू इन मेंटेनिंग और कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी. सेकेंड, वो जो ट्री है उसकी वजह से जो मिट्टी है वो मिट्टी बंध के रहेगी, जुड़ के रहेगी, बाइंड रहेगी, और जो ये डस्ट का पोल्यूशन है वो नहीं होगा. ये जो ट्री है ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ सिंक करके रखेगा. ये हमारी एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम करता है, अच्छी हवा देता है, और लंग्स है ये हमारे सिटीज के और इनफैक्ट इस पूरी अर्थ के. सो इट विल इंप्रूव द एयर क्वालिटी इंडेक्स. Third, I'm really sorry for it. Third is the temperature regulation. And we know that जब भी हम urban green spaces की बात करते हैं तो यहां पे कोई अगर एक ट्री है तो ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने का डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, राइट? क्योंकि हमें पता है इवेपोट्रांसपिरेशन की वजह से जो मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर की वजह से बादल बन सकते हैं. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मेंटेनेंस इन्हीं ट्री के द्वारा हो सकता है. और मोर ओवर ये ट्रीज ही हैं जो वाटर को रिचार्ज करते हैं, तो वाटर मैनेजमेंट का भी ये काम करेंगे. सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज अ ट्रिक टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, उसमें ट्री का क्या रोल है, ये सारे एस्पेक्ट को देखने के लिए आपको एक चीज जाननी पड़ेगी. वो ये है कि जैसे ही आप ये ट्री देखते हैं, इस ट्री का रोल क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करता है, अच्छी हवा देता है, ऑक्सीजन देता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को इंप्रूव करता है. ये यहां से डस्ट को नहीं उड़ने देता, तो डस्ट पोल्यूशन को खत्म करता है. ये यहां पे पानी को रिचार्ज करता है और उसके साथ साथ हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखता है, हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है. दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. वाटर मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये सारे काम किसके हैं? इसी ट्री के हैं. टेम्परेचर रेगुलेशन, climate regulation is something is being done by this. Moreover, it is also helpful in the biodiversity conservation. तो सोचने का तरीका है, हमें वो पकड़ना है. सोचने का तरीका है सिर्फ ये एक पेड़, बस, that's it, and the rest of the things will fall in place automatically. चाहे वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो, चाहे वो अर्बन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हो, these all things will fall in place. अब इनके पास थ्रेट क्या है? थ्रेट क्या है? सबसे पहले पॉपुलेशन बढ़ेगी. जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग अर्बन एरिया की ओर जाएंगे, तो देयर विल बी रैपिड अर्बनाइजेशन. जब रैपिड अर्बनाइजेशन होगा तो अर्बनाइजेशन के अंदर आप घर बनाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा. उसके साथ साथ उस इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए चीजों की जरूरत होगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा. सो यहां पर आप देख सकते हैं, जब भी आप देखेंगे रैपिड अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, देन पोल्यूशन की प्रॉब्लम, कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन होने लगेगा, और उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? क्लाइमेट चेंज. और ऐसी स्पीशीज जो कि उस पर्टिकुलर नेचुरल इन्वायरमेंट की, इकोलॉजिकल एरिया की है ही नहीं, वो वहां पे इन्वेड करने लगेंगी, तो इन्वेजिव स्पीशीज आ जाएंगी. दिस इज द क्वेश्चन, राइट? बहुत आसान सा सवाल है जिसको आप बहुत अच्छे से केटर कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहां पे पहले हमें बतानी है इंपॉर्टेंस ऑफ अर्बन ग्रीन स्पेसेस,
और उसके बाद सेकंड एस्पेक्ट आपको बताना है यहां पे, इनके अंदर अगर थ्रेट है कोई तो थ्रेट के मुताबिक आप देख सकते हैं यहां पे पहला थ्रेट क्या होगा? द प्राइमरी थ्रेट वुड बी द अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ कमर्शियलाइजेशन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ जब आपने जंगलों को काट दिया तो वो स्पीशीज आ गई, इन्वेजिव स्पीशीज, टेम्परेचर इंक्रीज होने लग गया, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। ये सारे थ्रेट आपको यहां पे दिखाई देंगे। क्लाइमेट चेंज के कारण भी तो थ्रेट दिखाई देता है इस पूरे अर्बन ग्रीन स्पेसेस को। दैट इज इट, खत्म कहानी, पहला क्वेश्चन डन डस्टेड। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स आर वाइटल फॉर मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी। अब मुझे समझ में आना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। ठीक है, पहले तो मैं क्वेश्चन को सोचने का तरीका बता रहा हूं, लिख तो हम लेंगे ही। वैरायटी, अब वैरायटी किस किस चीज की है? अब वैरायटी कैसे डेवलप होगी? वैरायटी और यू कैन से वेरिएबिलिटी। दिस वेरिएबिलिटी कैन बी जनरेटेड थ्रू वेरियस मीन्स। जैसे अगर मान लो कोई दो लोग बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हमेशा रह रहे हैं तो इनके बीच में एक खतरा हो जाएगा जिसको आप इनब्रीडिंग डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से क्या होगा? इनकी आगे आने वाली जनरेशन जो है वो खत्म होने लगती है। इसीलिए जनरली ऐसा बोला जाता है कि हम अपने क्लोज रिलेशंस में मैरिजेस नहीं करते, क्योंकि जो जीन है उनके अंदर वेरिएबिलिटी नहीं होती। जीन फ्लो जो है उसके अंदर प्रॉब्लम आने लगेगी, राइट? तो जीन फ्लो चाहिए, एक अच्छा जीन का फ्लो हो, वेरिएबिलिटी हो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो। ऐसा ही एस्पेक्ट है जो किसको जनरेट करेगा? बायोडाइवर्सिटी को। तो मेरे पास मेजर एरिया तो पता लग गया, बट आर अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। अब देखो, सबसे पहले तो बताना है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स क्या होते हैं। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को एक्सप्लेन करते ही हम इसके साथ सेम जैसा पिछले क्वेश्चन में किया है वैसा ही करेंगे। Wildlife corridors are crucial for the preservation of biodiversity by enabling the species to migrate from one region to the other region. But अगर हम इनके फ्रेगमेंटेड हैबिटेट्स में इनको आने जाने की इजाजत दे देंगे, इनके बीच में कॉरिडोर बना देंगे, तो क्या जीन फ्लो हो जाएगा? यस। सेकेंड, क्या इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बच जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। क्या बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाएगी? बिल्कुल सही बात है। अभी एक रिसेंटली न्यूज में था कि हम दिल्ली हरियाणा के बीच में एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, ताकि फ्रेगमेंटेड जो हमने क्या किया, जो भी ये एनिमल्स थे, एनिमल का जो हैबिटेट था उसको हमने ब्रीच कर दिया, उनको हमने काट दिया। इस वजह से अब प्रॉब्लम ये आने लगी ना कि उनकी पॉपुलेशन कम होने लगी। नाउ व्हाट वी नीड इज वी नीड टू डेवलप सच कॉरिडोर्स सो दैट वी कैन कनेक्ट दीज फ्रेगमेंटेड हैबिटेट्स, सो दैट what we will do is, however rapid urbanization and infrastructural development are shrinking these corridors. Done. Then significance क्या है? सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि it will facilitate the gene flow. उसके साथ साथ जब स्पीशीज एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होंगी तो उनके माइग्रेशन को सपोर्ट करेगा ये, और जैसे जैसे ये माइग्रेट होंगी तो डेफिनेटली इनके लिए एक डिफरेंट हैबिटेट्स बनेंगे, और जब डिफरेंट हैबिटेट्स बनेंगे तो वहां की बायोडाइवर्सिटी अच्छे से मैनेज हो पाएगी। थर्ड, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फोर्थ क्या है? एंश्योरिंग हैबिटेट कनेक्टिविटी, कि आप यार अगर आपको आपके घर के एनक्रोचमेंट कर दिया जाए, आपके घर पे बुलडोजर चला दिया जाए तो आपको अच्छा थोड़ी लगेगा। ऐसा ही हमने इनके साथ किया है, हमने भी तो इनके साथ यही किया। तो हमें क्या करना है कि इनके हैबिटेट को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, ताकि हम इन स्पीशीज को एक्सटिंक्शन से बचा सकें, इनको एक खुला माहौल दे सके ताकि ये रोम कर सके, फीड कर सके, रिप्रोड्यूस कर सकें और बायोडाइवर्सिटी को मैनेज कर सकें। somebody can say me, सर आप ऐसी कैसी बातें बोल रहे हो कि आई एम सॉरी फॉर माई बैड थ्रोट। अब अगर ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बट एक बात हमें समझना है, नेचर के अंदर एवरी सिंगल ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल एंड द रोल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज बीइंग असाइन्ड बाय द नेचर, and that is why this entire food chain and food web and a pyramid is being established.
So we need biodiversity for the better future. And that is why we are always trying to protect these species. The more these species will extinct, the more we will go closer to the mass extinction. अब अगर हम बोले कि अगर हमने ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड कॉरिडोर बना के अलग कर दिए तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाएगा, नहीं तो वो शेर तुम्हारे घर पे आ जाएगा। अगर आपने उसको कॉरिडोर बना के दे दिया कि बेटा यहां से वहां जाना है तो वो नहीं जाएगा ना वहां। सो दैट इज हाउ इट विल प्रिवेंट द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। सो दीज आर, और उसके साथ साथ जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको प्रोटेक्ट करेगा, फूड चेन को मेंटेन करेगा। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि अगर आपने वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की बात करनी है तो एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर क्या क्या काम कर सकता है। सबसे पहले तो यही वो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होगी, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, कंजर्व होगी। ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे होगा? सर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए आपको चाहिए एक फूड चेन का एस्टेब्लिशमेंट। सर, ये फूड चेन का एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होना चाहिए या फूड वेब जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। ठीक है, डन। सेकंड, आपको यहां पे इनको इनब्रीडिंग डिप्रेशन से रोकना है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से रोकने के साथ साथ आपने इनके जीन फ्लो को प्रमोट करना है। जीन फ्लो को प्रमोट करने के साथ साथ इनको खुद को भी, इनके हैबिटेट को क्या करना है, कनेक्ट करना है। जब इनका हैबिटेट कनेक्ट होगा तो ये रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, तब भी बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। उसके साथ साथ जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट को रोक दोगे तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि इनकी पॉपुलेशन सेव होती जाएगी। और हमें कंजर्व करना है एंडेंजर्ड स्पीशीज को, कंजर्व करना है एंडेंजर्ड स्पीशीज को, जिसकी वजह से व्हाट वी विल बी एबल टू डू विद दिस, we will be able to do the conservation of biodiversity in that region. This is what the wildlife corridor is all about, right? ये लिखने के बाद ways in which wildlife corridors are facing increasing pressure. सिंपल सीधी एक ही बात है, हमेशा की तरह अर्बनाइजेशन। उसके साथ साथ हमने फॉरेस्ट एरिया को काट के एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। जब हम एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर देंगे, माइनिंग एक्टिविटीज, डैम्स बनाने लगेंगे, एनक्रोचमेंट करने लगेंगे, पोचिंग होने लगेगी, टूरिज्म का प्रेशर आ जाएगा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होगा। सो बेसिकली एवरी ह्यूमन एक्टिविटी यू कैन थिंक ऑफ जिसकी वजह से आप इनके हैबिटेट को खा रहे हैं, एवरी ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे कि सबसे पहली चीज तो हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, जंगलों को काट रहे हैं। जब पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ेगा तो भी वो डेफिनेटली इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा। पॉपुलेशन के प्रेशर के साथ साथ आपको खाने के लिए, पॉपुलेशन को खाने के लिए चाहिए, तो एग्रीकल्चरल लैंड में इनका क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। फॉरेस्ट काट के आपने एग्रीकल्चर लैंड कर लिया। उसके साथ साथ आप और भी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन करते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती जा रही है, आपको रिसोर्सेज की नीड है, आपने माइनिंग एक्टिविटी कर दी, आपको बिजली की नीड है, आपने डैम्स बना दिए, आपने कनाल्स बना दी, जो कि कहां से जा रही हैं, इन नेशनल पार्क्स के बीच में से जा रही है। इस वजह से ये सारे के सारे दे आर अंडर दी थ्रेट। वेरी इजी क्वेश्चन टू टेक केटर। अब हम बात करते हैं, ये इट इज नॉट जस्ट नेसेसरी बट इज एन अचीवेबल टास्क which is achieved with the collaborative efforts of the community participation as well as the innovative ideas. So we shall include, how we can conclude it, we shall include the traditional knowledge with the modern innovation so that we can achieve the goal of this wildlife corridors to make biodiversity more sustainable in nature. This is how you can conclude it. मतलब इसको आप, मैंने जैसे अभी खड़े खड़े आपके सामने बोल दिया, बट इसको अगर हम लिखने लगेंगे तो we can maneuver it according to the situation. ठीक है, अगला एस्पेक्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। What challenges hinder the effective disposal of the vast amount of e-waste generated in India? देखिए, इंडिया के अंदर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वी नो वन थिंग दैट अर्बन एरिया के अंदर 103% मोबाइल फोन्स का पेनिट्रेशन है। 103% का मतलब किसी के पास एक से ज्यादा मोबाइल है। उसके साथ साथ दी वॉच, उसके साथ साथ दी टीवी,
इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एवरी सिंगल थिंग, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का अब जो दौर है वो बहुत बढ़ता जा रहा है. So yes, it is good for the growth of the nation, but simultaneously we need to cater the electronic waste as well. And I am pretty much sure that everyone who is listening to my lecture must have one phone which is of no use in their cupboard. Right? उनके पास होगा वो फोन, and somebody must have discarded it like anything. उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया. दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का डेटा से हमें इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है. और उसके साथ साथ हमें यह बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है ये एकमात्र ऐसा एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर्स की प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने इनिशिएट की थी इंडिया के द्वारा. दैट इज एन इनिशिएटिव दैट यू कैन यूटिलाइज हियर. सेकंड, हमें कैसे इफेक्टिव डिस्पोजल करना है, क्या हम इनोवेटिव तरीके अपना सकते हैं, क्या हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम इसे रिफर्बिश कर सकते हैं, क्या हम इसमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके उनका यूटिलाइजेशन वापस कर सकते हैं, क्या हमारे पास एक सेग्रीगेशन मेथड होना चाहिए, क्या यहां पे फॉर्मल सेक्टर है या इनफॉर्मल सेक्टर है. यही इस क्वेश्चन का पूरा आंसर है जो मैंने अभी बोला. दिस इज द एंटायर आंसर. सीधा मेरे को तो सिर्फ पहली बार मैंने क्वेश्चन देखा डिस्पोजल ई वेस्ट, मेरे दिमाग में बात आई कि भाई साहब हिंदुस्तान के अंदर ई वेस्ट इनफॉर्मल सेक्टर में है, हमारे पास सेग्रीगेशन नहीं है. मैं टीवी भी वहीं फेंक रहा हूं, मैं अपना मोबाइल भी वहीं फेंक रहा हूं, घड़ी भी वहीं फेंक रहा हूं. हमारे पास सेग्रीगेशन है, मैं बल्ब भी उतार के वहीं फेंक देता हूं. और यह सबसे बड़ी बात है. तीसरा, जो प्रोड्यूसर्स है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें. जो प्रोड्यूस कर रहा है उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ईपीआर, उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो, है ना. ये सारे मेजर चैलेंजेस हैं. उसके बाद स्ट्रेटेजीज. तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को क्या पता लग गया, इंट्रोडक्शन के अंदर मैं दूंगा या तो डेटा या मैं प्रोवाइड करूंगा या फैक्ट या डेटा. सेकंड, उसके बाद मैं चैलेंजेस पे आऊंगा एंड देन आई विल ट्राई टू प्रोवाइड सम इनोवेटिव सॉल्यूशन. सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन देयर. सो इन 2022 एज आई हैव मेंशन्ड, ये होना ही था, इंडिया जनरेटेड मोर देन 1.6 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ई वेस्ट एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. This which was more than double the amount generated in 2018. So despite we have electronic waste management rules under Environment Protection Act of 1986, but still it has various challenges associated with it. वो implementation को letter and spirit पे लेके जाना और उसके साथ साथ इसको formal sector में लेके आना, ये सबसे बड़ा challenge है. So as we can see here, there is a dominance of informal sector here in electronic waste, and we shall have better electronic collection, adequate collective system. कलेक्शन सिस्टम होना चाहिए. मैं कहता हूं मैंने वहीं पे बल्ब फेंक दिया, वहीं पे अपना मोबाइल फेंक दिया, वहीं पे घड़ी फेंक दी, उसके बाद फॉर्मल रिसाइकलिंग नहीं है उसकी. फिर उसके बाद इसका ई वेस्ट का हम इंपोर्ट कर लेते हैं. मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हो यार. रेगुलेटिंग द इनफ्लो ऑफ ई वेस्ट, ई वेस्ट का इंपोर्ट करना. डेवलप्ड नेशन जो सिग्निफिकेंटली अपना लार्ज पोर्शन ऑफ ई वेस्ट क्या करते हैं, शिप कर देते हैं डेवलपिंग नेशन में. हमारे रेगुलेशन का जो एनफोर्समेंट है वो बहुत वीक है. तो इसको ऐसे समझ लो ना कि लेट्स से इसको कैसे समझ सकते हैं, इसकी डायमेंशंस को जनरेट करने के लिए लाइफ साइकिल अगर हम देखते हैं किसी भी वेस्ट की, तो मान लो मेरे पास फोन है, ठीक है. अब ये फोन खराब हो चुका है, अब ये फोन खराब हो गया, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है. पहली बात तो ये फोन चला जाएगा, कोई कलेक्ट करने नहीं आया, कलेक्शन नहीं है. अगर कलेक्शन हो भी गया तो उसने उसको सेग्रीगेट नहीं किया. मेरे पास फोन था, मेरे पास एक वॉच थी और इनका सेग्रीगेशन नहीं हुआ. सेग्रीगेशन हो भी गया तो इनकी रीसाइक्लिंग नहीं हुई, और साइक्लिंग हो भी गई तो वो किसके द्वारा की जा रही है, इनफॉर्मल सेक्टर है. और ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो रूल्स हैं उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं है, एनफोर्समेंट नहीं है. यही तो मेजर एस्पेक्ट है जो हमें यहां पे समझने हैं. दैट इज इट, खत्म, डन, डस्टेड. नेक्स्ट पार्ट. अब इसके बाद आता है हमें प्रोवाइड करना है कुछ सॉल्यूशन भी. अब स्ट्रेटजीज क्या है. स्ट्रेटजी ये है कि मान लो आज अगर आप देखते कि कोई एक व्यक्ति प्लास्टिक की बोतल को पिक कर रहा है, रैक पिकर, तो वो इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को भी रैक पिकर क्या कर सकता है, पिक कर सकता है, बट ही मस्ट बी इंसेंटिवाइज्ड. एंड मोर ओवर हम भी इंसेंटिवाइज होने चाहिए. आपने देखा होगा बायबैक पॉलिसीज आ रही हैं अब,
बायबैक पॉलिसी के अंदर मैंने अपना पुराना फोन बेचा, उसकी कुछ वैल्यू मिल जाएगी मुझे, वो कंपनी तक पहुंच जाएगा। ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। हमें जो ई वेस्ट कलेक्शन है इसको डिसेंट्रलाइज और सेग्रीगेटेड मैनर में करना पड़ेगा। वी विल हैव टू इंश्योर द प्राइवेट पार्टिसिपेशन, वी विल हैव टू इंश्योर द इनोवेटिव मेथोडोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज टू रिसाइकल द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, वी विल हैव टू मेंटेन द robust governance structure to regulate the mechanism as far as these e-waste are concerned। यही तो एस्पेक्ट है, सारे आंसर में छुपे हुए हैं। जैसा कि आप देख पाते हैं यहां पे डिसेंट्रलाइज्ड ई वेस्ट कलेक्शन, ताकि हमारे पास एक नेटवर्क हो। डिसेंट्रलाइज का मतलब मेरे को पता है, मेरे घर से एक व्यक्ति लेके गया, ये व्यक्ति ने इस कंपनी में देना है, इस कंपनी के थ्रू यहां पे ये रिसाइकलिंग के लिए जाएगा, तो ये नेटवर्क इस्टेब्लिश्ड है, एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क इस्टेब्लिश्ड है। जब तक ये इस्टेब्लिश्ड है तब तक काम सही है। नेक्स्ट इज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, देन वी हैव नेक्स्ट इज द इंसेंटिव बेस्ड टेक बैक प्रोग्राम्स। टेक बैक प्रोग्राम्स का मतलब कि जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मैंने अपना पुराना फोन दे दिया नया फोन खरीदने के लिए, फिर इसको हम फॉर्मल सेक्टर्स में लेके आए, इंटीग्रेशन करें। रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं। डिजाइनिंग के लिए रिसाइकलिंग करें। एड्रेसिंग द चैलेंज इज something which is necessary and it requires public awareness, it requires innovative methodology, it requires good enforcement of the policies in the letter and spirit by the government of India to address the problem of electronic waste which is going to be increased in the upcoming years। Understood? खत्म फास्ट। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस एक पल को सोचना है और फटाफट से लिख देने हैं पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है EIA, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। राइट, EIA इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड इज बीइंग अ रिएक्टिव रादर देन अ प्रोएक्टिव वन। देखो होता क्या है, एक प्रोजेक्ट लगाना है, उसके लिए इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, उसकी NOCs मिलनी चाहिए, होना तो पूरा चाहिए। बट भारत में क्या होता है कि पहले प्रोजेक्ट लग जाता है, फिर इंपैक्ट असेसमेंट होते रहते हैं। तो ये प्रोएक्टिव है या रिएक्टिव है? दिस इज रिएक्टिव, होना प्रोएक्टिव चाहिए। बट अभी जो रोल है उसके अंदर EIA बहुत ही पीछे रह गया है, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं उनके अंदर बहुत सारा रैम्पेंट करप्शन एंड नेक्सस के कारण EIA को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। सो व्हाट वी रिक्वायर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज the better implementation of the procedures of EIA. So when we are going to introduce this question, we need to start writing by the aspect of what exactly EIA is. EIA is a process which involves the potential environmental effect of a proposed project. Let's say if I want to have a mining project in any area, what that project can possibly harm in that region. That is something we need to evaluate, assess with the environment impact assessment. It will ensure the environmental harm that project can make to that particular area, economic and social impact as well. Then, what are the various reasons EIA is often criticized? सबसे पहला क्या है? पोस्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग। देखो, EIA is often conducted after a project's blueprint is ready and finalized. That's what I told you. रिएक्टिव का मतलब क्या? प्रोजेक्ट के बारे में सोच लिया, ब्लूप्रिंट फाइनल हो गया, सब कुछ देख लिया, अब हम सोच रहे कि अच्छा इसका इन्वायरमेंट कंसर्न क्या होगा। रादर देन दिस वी शैल हैव फर्स्ट कंडक्ट द EIA टू दैट एरिया एंड इश्यू द लिस्ट दैट दीज आर द पॉसिबल इन्वायरमेंटल हार्म्स एंड such industries are not even eligible to apply for it. This is the proactive approach. I hope you are getting my point. वो कंपनीज अलाउड ही ना हो कि भाई ये तो कर ही नहीं सकती अलाउ, क्योंकि इसके इस एरिया के ये इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स हैं। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। सेकेंड एस्पेक्ट हियर इज, हमारे पास कोई बेसलाइन स्टडीज ही नहीं है। वी नीड कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल डेटा on the basis of which we can assess the exact situation what is there at the ground level. And if it is so, then we have limited consideration of cumulative impacts. EIA often fail to assess the cumulative impacts of multiple projects, focusing instead on isolated assessment that overlook broader environmental implication.
एक प्रोजेक्ट लगा, उस प्रोजेक्ट का जो एंसिलरी नुकसान हो सकता है वो हम देखते ही नहीं है, हम सिर्फ ओवरलुक कर देते हैं, बाकी के नुकसान को एक छोटा सा एरिया देख के खत्म कर देते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच नहीं है, एडहॉक अप्रोच है, कंपार्टमेंटलाइज्ड अप्रोच है ना, ये सारी चीजें हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स नहीं है, फ्रैक्शनल ओनरशिप है, ये वर्ड्स यूज करने हैं मेरे बच्चे। फ्रैक्शनल ओनरशिप है, उसके साथ साथ ओनरशिप है, ये कीवर्ड्स हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए, एडहॉक अप्रोच है, कंपार्टमेंटलाइज्ड अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है, कंपार्टमेंटलाइज्ड अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है ना। अब ये चीजें होने के बाद आगे बढ़ते हैं। वीक पब्लिक पार्टिसिपेशन, ऑब्वियसली हम भी जानते नहीं है, हमारा अवेयरनेस इतना नहीं है, और उसके साथ साथ यहां पे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रेशर बहुत है। जैसे कि हम जानते हैं, वी नीड डेवलपमेंट, वी नीड that this nation must grow and reach to the developed nation target of 2047. We are in अमृत काल, right? So इस अमृत काल के अंदर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो चाहिए, बट हम उसके साथ साथ मॉनिटरिंग को लैक नहीं कर सकते, फॉलोअप को लैक नहीं कर सकते। हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट होना चाहिए, जिसमें आप पॉलिसी प्रोग्राम बनाएं ताकि आप उसको लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट भी कर सके, उसे मैंडेटरी कर दें पब्लिक कंसल्टेशन के साथ, और डायनेमिक बेसलाइन डेटा लाएं, साइंटिफिक डेटा कलेक्शन हो, बिग डेटा एनालिटिक्स हो, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हो, इनोवेटिव मेथोडोलॉजीज डिसाइड की जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग हो फॉर ईआईए प्रैक्टिशनर्स, राइट। दिस कैपेसिटी बिल्डिंग, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, क्यूमुलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट हो, इंडिपेंडेंट ईआईए ऑडिट्स हो, अकाउंटेबिलिटी असाइन हो। उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी होगी तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। सो at this point of time, despite there are so many limitations, but this has potential to reform, like integrated strategic environment assessment, public participation. With these improvements, EIA can effectively prevent environmental degradation. बस वो EIA के फायदे आपको बताने हैं, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है उसके लिए हमें सर्वे करने, हमें कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, हमारे पास डेटा होना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस कम हो, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हो, ताकि हम इसको लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट भी कर सकें। देन environmental implication for transitioning to the renewable energy. How can the transition to be managed to minimize ecological disruption? सबसे पहले तो हमें यह पहली बार देखने को मिला, when I saw this question I was also shocked, यार अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी की ओर सारी दुनिया कह रही है चले जाओ, तो क्या रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांजिशन के भी नुकसान हो सकते हैं? तो वो क्या हो सकते हैं और उसके साथ साथ क्या नीड है? दिस इज समथिंग, एनवायरमेंट के जो क्वेश्चन है दे मस्ट बी बैक्ड बाय सम डेटा। जैसे कि आप देख सकते हैं, द ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी is a step in addressing the climate change as highlighted by IPCC 6th assessment report, so that we can keep global temperature below the rise of 1.5 degree Celsius. But इसके साथ साथ हमें, जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रहे हैं तो हमें एक बैलेंस अप्रोच रखनी पड़ेगी सस्टेनेबिलिटी के साथ। व्हाट इज दैट अप्रोच? सबसे पहला, पॉजिटिव एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएंगे तो यार क्या बताऊं इसके अंदर, मतलब कार्बन एमिशन कम होगा, ठीक है, चलो डन। इकोसिस्टम प्रोटेक्ट होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, वाटर यूसेज रिडक्शन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब आता है अगला एस्पेक्ट, नेगेटिव इंप्लीकेशन के अंदर। अगर एक बात बताओ, मैं एक सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा प्लांट लगाना चाहता हूं, तो क्या मैं उस एरिया की लैंड यूज पैटर्न को चेंज कर दूंगा? यस डेफिनेटली। वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो हो रही होगी वो नहीं हो पाएगी, शेड आ जाएगा। उसके साथ साथ क्या वहां पे जो लोग रह रहे हैं, जो लोग मतलब वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे भाडला सोलर पावर पार्क लगा जोधपुर के अंदर, इतना बड़ा एरिया आपने कवर कर दिया, बट उसके साथ साथ आपको पता अगर आपने उसको ग्रिड से कनेक्ट किया तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहां जाएगा, है कि नहीं? ये वन एस्पेक्ट है नेगेटिव इंपैक्ट के अंदर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज,
वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज, क्यों भाई सोलर पावर पैनल्स खराब नहीं होंगे क्या? होंगे। विंड मिल्स के जो टरबाइंस हैं वो खराब नहीं होंगे? होंगे। तो उनका वेस्ट डिस्पोजल, ई वेस्ट की वैसे ही इतनी समस्या है हमारे पास। सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर को कहां वेस्ट करके लेके जाओगे? लोकल वाइल्ड लाइफ पे और विजुअल एंड नॉइज पोल्यूशन तो होता ही है। एंड देन मैनेजिंग द ट्रांजिशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टू मिनिमाइज द इकोलॉजिकल डिसरप्शन। अब देखो, सस्टेनेबल साइट सिलेक्शन। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसी साइट को चूज करें जो कि सस्टेनेबल हो, जहां पे लैंड यूज चेंज ना हो। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, लैंड यूज चेंज ना हो। दूसरा, वहां पे जो लोकल वाइल्ड लाइफ है उसको इंपैक्ट ना हो। तीसरा, जो ये वेस्ट जनरेशन हो रहा है उसका सेग्रीगेशन, एडिक्वेट कलेक्शन और रिसाइकलिंग प्रोसेस तैयार हो। चौथा, वहां के जो एग्रोवोल्टेइक्स हैं, इंटीग्रेटेड सोलर पावर जनरेशन विद एग्रीकल्चर बाय इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स ओवर क्रॉप फील्ड्स। हम क्या करें, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ट्यूबवेल लगा रहे हैं, डीजलाइजेशन जो हो रहा है उसको डीजलाइजेशन कर दें, उनको सोलर पंप के साथ रिप्लेस कर दे, ताकि वी कैन डू दी डीजलाइजेशन। यू कैन यूज दिस वर्ड डीजलाइजेशन। हर बार जब भी आता हूं तो कोई ना कोई 2-3 वर्ड दे के जाता हूं, तो आप याद रखना इसको, डीजलाइजेशन। देन वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली डिजाइन करें, बिल्कुल सही बात है। जैसे वेस्टर्न घाट में रडार टेक्नोलॉजी को शट डाउन कर देना चाहिए, ठीक है, वो बर्ड्स के साथ बहुत बड़ा धोखा है। देन रिसाइकलिंग एंड सर्कुलर इकोनॉमी, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। उसके बाद लास्ट एस्पेक्ट आपको दिखता है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, तो आप रखेंगे पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बहुत ही आसान है इन्वायरमेंट के आंसर करना, क्योंकि शायद ये क्वेश्चन आसान है, या तो ऐसा है, या आप इनको बहुत अच्छे से आसानी से डील भी कर सकते हैं। देन व्हाट वुड बी द ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी इज नीड ऑफ द आवर with cognizance to climate change, but sustainable transition is needed for the better future, as well as the conservation and maintenance of biodiversity, which require recycling processes, community involvement and better innovative solution to transition from non renewable energy to renewable energy। खत्म, डन, डस्टेड। उसमें से एक भी वर्ड आपको यहां से नहीं दिखेगा। दिस इज व्हाट आई हैव जनरेटेड राइट अवे। सो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है ना, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रहे हैं तो क्या फायदे इसके होने वाले हैं, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question talks about both ecological restitution and rebuilding aim to restore ecological balance but differ in their focus and methods. Comment. बड़ा हैवी सा क्वेश्चन है कि इकोलॉजिकल दिस रेस्टिट्यूशन क्या होता है और उसके बाद रीवाइल्डिंग क्या होता है। इन दोनों को समझना ही सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है इस क्वेश्चन के अंदर। एक तो ऐसा होता है कि मान लो मैंने बोला कि कोई एक एरिया है जो खराब हो गया और मैं उसको डेलिबरेटली रीस्टोर करना चाहता हूं और उसकी ओरिजिनल स्टेट पे लाना चाहता हूं बाय द ह्यूमन इंटरवेंशन, देन इट इज टर्म्ड एज इकोलॉजिकल रेस्टिट्यूशन। और अगर मान लो इसी इकोलॉजिकल एरिया को डैमेज हो गया है, रिहेबिलिटेशन करना है, बट वो नेचर अपने आप हील कर ले, नेचुरल मेथड से अगर वो हील होता है तो उसको विदाउट दी और मिनिमाइजिंग द ह्यूमन इंटरवेंशन इन इट, देन इट इज टर्म्ड एज सेल्फ सस्टेनिंग इन नेचर, और इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल रीवाइल्डिंग। डन। अब इसके अंदर ये इकोलॉजिकल बैलेंस करने के दोनों तरीके हैं, इनका फोकस अलग है, इनके मेथोडोलॉजीज अलग हैं। देखो कैसे हैं। सबसे पहले तो इनके बेनिफिट क्या है, वेज इन विच बोथ एम टू रीस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस। ऑब्वियसली ये तो बात है कि हम रीस्टोर करना चाहते हैं, हम जो डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स हैं उनको रीस्टोर करना चाहते हैं, चाहे हम सोइल की हेल्थ को रिकवर करें, चाहे हम उस रीजन की एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को अचीव करें या वेजिटेशन कवर को इंक्रीज करें। डन। उसके बाद अगला एस्पेक्ट क्या है, अगला है रिहेबिलिटेशन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज। यस, इट इज रिक्वायर्ड। जब आप जो भी उस रीजन से आपने वेजिटेशन कवर को हटा दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, जो वहां की स्पीशीज वो खत्म हो गई, उसके बाद आपने सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव किया, वेजिटेशन ग्रो किया, नेचुरल वेजिटेशन को ग्रो होने दिया,
ऑटोमेटिकली जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका रिहेबिलिटेशन भी होने लगेगा, वाटर बॉडीज रिवाइव होने लगेंगी। ये नेचर का बैलेंस है, वो अपने आप कर लेता है। जैसा कि आपको एक बात याद होगी कि येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है वो पास्ट के अंदर डेजर्ट में कन्वर्ट होने वाला था, क्योंकि जो टॉप प्रीडेटर्स हैं वो खत्म होने लगे। तो अगर वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता तो भाई साहब ये तो दिक्कत थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो वहां पे वोल्फ थे उनको इंट्रोड्यूस किया ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस किया जाए, और उससे धीरे 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 वो डेजर्ट अपने आप एक नेशनल पार्क में कन्वर्ट हो गया। तो वो धीरे धीरे नेचर, एक पेड़ लगेगा, बर्ड्स आएंगे, बर्ड्स उड़ेंगे, वो वहां से पोलन लेके जाएंगे, दूसरी जगह पे स्प्रेड करेंगे, वहां एक नया पेड़ उगेगा, वहां और बर्ड्स आएंगे, बर्ड्स के साथ साथ वहां पे ऑर्गेनिजम्स, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उनको खाने के लिए गिलहरियां आएंगी, मतलब और भी छोटे छोटे जो रेप्टाइल्स हैं वो आने लगेंगे। दैट्स हाउ द एंटायर इकोसिस्टम कैन बी रिस्टोर्ड। नई नई वाटर बॉडीज, अगर मान लो इतना बड़ा रीजन बन गया कि वहां पे हाथी आ गया, एलिफेंट आ गया, अगर आपने कोई बहुत बड़ा एरिया रिवाइव कर दिया, एक बहुत बड़ा कॉरिडोर रिवाइव कर दिया, तो वहां पे एलिफेंट आएगा, एलिफेंट का जो डंग है उसके अंदर फर्टिलिटी होती है, सॉइल की फर्टिलिटी बनेगी। एलिफेंट्स आर द इंजीनियर ऑफ द इकोसिस्टम, दे विल डिग लैंड, वहां पे पानी इकट्ठा होगा, वाटर बॉडीज बनने लगेंगी, उन वाटर बॉडीज को पीने के लिए दूसरे और जानवर आने लगेंगे। तो इस हिसाब से ये पूरा इकोसिस्टम रिस्टोर हो जाता है, ताकि वहां पे जो इन्वेजिव स्पीशीज है उनको कॉम्बैट कर लिया जाएगा, क्योंकि एक नेचुरल इकोसिस्टम वहां डेवलप हो जाएगा। जो इकोसिस्टम का मैनेजमेंट है वो कंट्रोल्ड तरीके से होगा। दिस इज द आइडिया। अब यहां पे आप देख सकते हो कि हम कुछ कीस्टोन स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कर दें। मैंने आपको एक कीस्टोन स्पीशी का नाम पहले ही ले दिया है, एलिफेंट इज अ कीस्टोन स्पीशी। ये बहुत जरूरी है। वॉल्स इन द येलोस्टोन नेशनल पार्क, जिन्होंने उस पूरे एरिया को रिवाइटलाइज कर दिया है ना, ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देन लार्ज स्केल हैबिटेट कनेक्टिविटी, जो हैबिटेट की कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि उसके एस्पेक्ट हमने देख लिए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज एसेंशियल फॉर द बायोडाइवर्सिटी। देन उसके बाद आता है प्रमोटिंग नेचुरल प्रोसेसेस, चाहे हम सीड डिस्पर्सल कर दें या नेचुरल प्रिडेशन के माध्यम से, ये सारे एस्पेक्ट्स मैं आपको बता चुका हूं, और इसके अंदर मेथड और फोकस दोनों एस्पेक्ट्स आपके सामने हैं। देखो, सबसे पहले टारगेटेड रिस्टोरेशन, इकोलॉजिकल रेस्टिट्यूशन के अंदर हम स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक जो स्पीशी है, स्पेसिफिक एरिया और जो स्पेसिफिक स्पीशी है उनको हम एम करते हैं। देन जो इकोलॉजिकल रीवाइल्डिंग है ये रिस्टोर करती है पूरे इकोसिस्टम को, डन विद द की स्पीशीज एंड नेचुरल प्रोसेसेस अपने आप। ह्यूमन इंटरवेंशन यहां पे हाई है, यहां पे मिनिमल है। बायोडाइवर्सिटी गोल, हिस्टोरिकल बायोडाइवर्सिटी को अचीव करना, इसको ये जो जब अपने आप होगा तो वो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को अचीव करेगा। ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। यहां पे आउटकम बहुत ही प्री डिफाइंड आउटकम होंगे, क्योंकि जब ह्यूमन इंटरवेंशन है यहां पे अनप्रिडिक्टेबल है। यहां पे इसके एग्जांपल अगर देखें तो कोरल रीफ्स बाय द ट्रांसप्लांटिंग कोरल फ्रेगमेंट्स इन द गल्फ ऑफ मन्नार, बायोरॉक टेक्नोलॉजी है ना, इन सब से। और यहां पे हमने अपने आप ऑटोमेटिकली बस ग्रो होने दिया। देन स्पीशीज री इंट्रोडक्शन, यहां पे हम केयरफुल सिलेक्शन करेंगे, यहां पे कीस्टोन स्पीशीज आएंगी, यहां पे हैबिटेट इंजीनियरिंग के लिए कंट्रोल्ड टेरेसिंग होगी, वहां पे ऐसा नहीं होगा। इन्वेजिव स्पीशीज को एक्टिवली हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, यहां पे प्रीडेटर कॉम्पिटिटर बैलेंस चलेगा। फिर पोल्यूशन कंट्रोल हम डायरेक्ट एफर्ट लगाएंगे, वहां पे वो सेल्फ रेगुलेट करता है। यहां पे इकोसिस्टम की मॉनिटरिंग हम करेंगे, वहां नेचर खुद करेगा फीडबैक सिस्टम से। दैट इज हाउ वी कैन सी both are the prospects related to the ecological restoration, but their approaches are different, their focus is different. One is restoring itself with the help of human intervention, and other is with the natural manner. So when we will intervene it, we will always try to get better results. So it will be focused, it will be planned, it will be there to achieve some certainty of the biodiversity. We will intervene it, we will introduce certain species, we will monitor it, we will regulate it, we will fence it, we will create some infrastructure there for the special aspect. We will introduce some species there, we will control the invasive species, but on the other hand nature will take care of itself with the natural feedback system.
That is how the difference can be seen in the terms of methodologies. But the ultimate result is to restore the ecosystem for the sustainable future. Done. Last question here is the question related to the consequences of air pollution in India. What policy measures have taken? मतलब this is the question that I hope everybody जो 5वीं क्लास का बच्चा होगा वो भी लिख पाएगा कि हाँ ठीक है, देखो एयर पोल्यूशन की समस्या है। अब एयर पोल्यूशन की समस्या क्यों है? ठीक है, वेहिकुलर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, थर्मल पोल्यूशन है, उसके साथ साथ एयर पोल्यूशन के कारण, एयर पोल्यूशन का कारण कंस्ट्रक्शन भी है, डस्ट का पोल्यूशन है, उसके साथ साथ स्टबल बर्निंग है। कितने कारण आप सोच सकते हो, ये सारे कारण एयर पोल्यूशन के आपको यहां पे दिखते हैं। अगर आप दिल्ली भी अपने दिमाग में ले आओगे तो आपको पता लग जाएगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बोला जाता है, पता नहीं पीछे कौन सा डेटा लिखा हो, बट व्हाट आई हैव रेड इज 39 आउट ऑफ द टॉप 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर फ्रॉम इंडिया, एंड दिल्ली कंटिन्यूज टू बी द most polluted capital of the world. That is how you can start your answer. Air pollution is becoming a big problem for the persons who are living in the urban area specifically, and is resulting into the declining of life expectancy even. Then next is sources of air pollution in India. Vehicular emissions, क्या बताऊं इसके अंदर। देन सेकेंड इज द इंडस्ट्रियल एमिशन, एग्रीकल्चर, स्टबल बर्निंग ऑफ बायोमास एंड सॉलिड फ्यूल्स, पावर प्लांट्स एंड थर्मल स्टेशंस, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? भैया तबियत खराब होगी, भैया इकोनॉमिक बर्डन बढ़ेगी, भैया क्लाइमेट चेंज होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको इंट्रोडक्शन में। टूरिज्म पे इंपैक्ट होगा, सोशल इनइक्वालिटी आएगी, और इसके लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, चाहे वो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, चाहे वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, चाहे वो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, चाहे वो सफर एक ऐप है, सफर ये याद रखना है भाई। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो ये NCAP है, दिस इज टू फाइंड आउट, लॉन्च इन 2019। हम पार्टिकुलेट मैटर के लेवल को 2024 तक कम करना चाहते हैं, और ये जो 122 सिटीज हैं इनको हम बोलते हैं नॉन अटेनमेंट सिटीज। अब ये नॉन अटेनमेंट सिटीज जो हैं इनको फाइंड आउट करना, ये प्रीलिम्स का पार्ट है। नॉन अटेनमेंट सिटीज कैसे आइडेंटिफाई की जाती हैं? जिन्होंने नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक पिछले 5 साल के अंदर अपने टारगेट को एयर पोल्यूशन के मुताबिक अचीव नहीं किया, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। कुछ फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी आइडेंटिफाई की जाती है। 113 और 9, 113 नॉन अटेनमेंट सिटीज है, 9 फाइनेंस कमीशन के द्वारा आइडेंटिफाई की गई है, जो आप देख सकते हैं। ये एक प्रोग्राम है। दूसरा आप बात कर सकते हैं, हम एयर पोल्यूशन की फोरकास्टिंग भी तो कर सकते हैं। फोरकास्टिंग ऑफ द एयर पोल्यूशन, फोरकास्टिंग ऑफ एयर पोल्यूशन, राइट। देन नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये तो सबको ही पता होगा। भारत स्टेज नॉर्म्स, क्लीनर कुकिंग फ्यूल्स, उजाला स्कीम, देन उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी। सो दैट इज हाउ वी कैन कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। व्हाट इन माय पर्सपेक्टिव इज दिस क्वेश्चन नीड no discussion, honestly saying, because ये क्वेश्चन ऐसा है, if you are preparing for UPSC, I hope that such questions are there to write directly even without knowledge. मतलब अगर नॉलेज भी नहीं है तो भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट दिस क्वेश्चन कैन बी हैंडल्ड बाय एनी पर्सन who just lives in the surrounding, right? So I hope these all questions will help you a lot for in this journey, and wish you all the very best. Thank you so much.